के बेरोजगारों के लिए किसी झटके से कम नहीं। सत्र में स्पीकर ने सदन को सूचना दी कि 1932 खातियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक राजभवन में लौटा दिया, कुछ सुझाव और आपत्तियों के साथ। विधेयक पर देश के अटॉर्नी जनरल की ओर से राजभवन को भेजे गए पत्र में कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी गई, जिसमें कहा गया है कि विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है, जो स्थानीय परिस्थितियों, लोकाचार और संस्कृति के साथ तो फिट बैठती है, लेकिन तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित प्रतीत नहीं होती। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन कर सकती है और इस प्रकार अमान्य हो सकती है। हालांकि पैरा 27 में दी गई राय को प्रदान कर इसे बचाया जा सकता है। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। मैं संदेश को हूबहू उसी तरह से पढ़ रहा हूँ। झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन and for extending the consequently social, cultural and other benefits to such local persons, Bill 2022 is received in this office for forwarding it to Honorable President of India for assent. Considering legal issues involved in the bill, opinion from Learned Attorney General of India was sought by letter number 2830/GS dated 01/09/2023 of this office. Learned Attorney General for India by letter number 202/2023 dated 15/11/2023 has opined that copy attached. A. The definition of the term local person in bill is conducive to the aspiration of the people, which fits in the ethos of culture and local condition and appears to be based on more rational and objective criteria. B. It appears to me that section 6A of the bill may violate of Article 14 and Article 16(2) of the Constitution and thereby invalid. The same can, however, be saved by providing as opined by me in para 27. बिल में कई बदलाव और 5 साल बाद समीक्षा का सुझाव दिया गया है। 1 दिसंबर को राज्यपाल ने बिल विधानसभा को वापस लौटाया था। इससे पहले स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिमाणी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक को साल 2022 में पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल सचिवालय ने विधिक राय लेकर इसे भारत के अटॉर्नी जनरल को भिजवाया। जब बिल पास हुआ तो राज्य के युवाओं के साथ ही JMM के विधायकों और मंत्रियों ने जश्न मनाया था। इस दौरान नए कानून के पटके पहनकर सीएम हेमंत सोरेन के साथ फोटो सेशन भी खूब हुआ। As per para 27 of the opinion, by way of the present bill, appointments of class 3 and class 4 posts under the state government will only be reserved for the local person. By such reservation to class 3 and class 4 posts exclusively for local person under the state government, there is an absolute bar on the person other than the local person. It appears to me that things exclusive of persons other than local persons from even applying to class 3 and class 4 posts under the state government may not be in tone with the scheme of the Constitution. I think that instead of the complete exclusion, constitutionally safer course would be to provide that all things being equal, preference would be given to local person in respect of the class 4 post. However, the law can provide that local person alone will be considered, but this scheme will be reviewable after a period of 5 years. This will supply a date-based understanding to the government. This will also do justice to local person who may better deserve the employment opportunities within their own state. Accordingly, the said bill is being written for the reconsideration
as per the legal and constitutional opinion of learned Attorney General for India. लेकिन बिल के लौटने के साथ सरकार और राज्यवासी दोनों मायूस हैं। अब सरकार संशोधन के साथ इस बिल को फिर से सदन में पेश कर सकती है, बिल पर चर्चा करा सकती है और बिल को विचार के लिए प्रवर समिति को सौंप सकती है। देखना होगा इस बिल पर आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। अटॉर्नी जनरल की राय है कि यह बिल विधेयक की धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन कर सकता है। आइए समझते हैं कि संविधान की ये धाराएं असल में हैं क्या। स्थानीय नीति विधेयक 2022 में पारित किया गया था विधेयक। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से मांगी थी राय। अटॉर्नी जनरल की ओर से दिए गए कई सुझाव, कई बदलाव और 5 साल बाद समीक्षा का सुझाव। एजी की विधेयक के कानूनी पक्ष पर राय। विधेयक में स्थानीय व्यक्ति शब्द की परिभाषा जन आकांक्षाओं के अनुकूल पर तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित नहीं। विधेयक की धारा 6A पर एजी की राय। संविधान के अनुच्छेद 14 व 16(2) का उल्लंघन कर सकती है। धारा 16A इस प्रकार अमान्य हो सकती है। विधेयक के पैरा 27 में बदलाव की दी राय। क्या है पैरा 27? राज्य की वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर नियुक्ति केवल स्थानीय व्यक्तियों के लिए होंगी। राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 और वर्ग 4 के पद झारखंड वासियों के लिए आरक्षित होंगे। स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पैरा 27 पर एजी की राय। स्थानीय व्यक्तियों के अलावा अन्य को रोकना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं। सभी को आवेदन का पात्र रखें, लेकिन प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दें। क्या है अनुच्छेद 14 व 16(2)? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी धर्म, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। भारत के हर राज्य क्षेत्र में सभी नागरिक, देशी विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध। समानता के प्रकार प्राकृतिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का अभाव। राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित न करें। राज्य कानूनों के संरक्षण से इनकार न करे। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(2) केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में अपात्रता न होगी, न विभेद किया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार के मामलों पर अवसर की समानता। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए इसका अपवाद बनाया जा सकता है। झारखंड विधान